or add value in the value chain system. Another point that I would like to throw to the distinguished guest is that we all are aware that around 85% of the state population reside in rural areas, and the significant part of that has a migration. Some people do migrate. Some of them are seasonal, some of them are permanent in nature. And as I said, that around 50% of the workers are employed in agriculture, so which leads to underemployment. So one of the reason that people could have identified with respect to Bihar's scenario is that this is the underemployment, which may be due to lack of meaningful employment opportunity, and the expected startups and the manufacturing units are expected to provide employment opportunities so that this problem is also taken care of. As far as the geographical area is concerned, it is abundant. There is abundant water resource and the fertile alluvial soil, which provides favorable ground for growth of agriculture sector in Bihar. But the recent years, and this is unique. I mean, within a state, if we look at the climatic condition is such that at the same time you have drought and excessive rainfalls. We have seen floods and droughts in different years. This year, there is shortfall in rainfall, but in general, if you look at say 10 year or 5 year, so at the same time you will find that there is a flood and the drought occurring in the state, which adds to the uncertainty related to the production in Bihar. Livestock and the fishing under this scenario, when crop is affected, offers hope to the agriculture or related activity. So people are engaged into these activity. As far as cropping pattern is concerned, food grain production, which includes cereal and pulses, contributes 94.3%, oilseeds only 1.7%, and sugarcane 3.1%. So this leads to the point that horticulture, which we sometimes we refer as a sunrise sector, so and that includes say fruits, vegetable, and flowers, has importance for growth in agriculture also. So it has a potential in creating significant employment and income prospects. And why so? While we say that these are even more resilient to climate irregularities, and that makes them attractive, especially for small farmers. And when we say that this horticulture gives us a hope, इससे हमें उम्मीदें आती है ऐसा, इसलिए भी कि बहुत सारा abundant or huge market for the products at both state and national level are there, which other distinguished speaker will add to that also. When we look at the crop out of horticulture, makhana, and we have speakers who are into this field of production of makhana. So if you look at the data, production, there was a decline in production, 2.5% decline in production in makhana, and 1.9% in the area covered under. So this is the compound annual growth rate if you look at for the period between 1920 and 21-22. So we have a hope that these kind of products are going to help us, but at the same time we see that there is a reduction in the production or the cultivation area both. Among fruits, the state has mango, and which has the highest share, 44% of the area. Next to mango is banana, and banana, which is 11.8% of the area, is cultivated for banana. Lychee, 10.1%. And when we look at the production share, banana has the highest production share among the fruits produced in the state, which is 39.5%. And then comes the mango. आम उसके बाद आ रहा है. अब बनाना प्रोडक्शन होता कहाँ है, हमारे बहुत सारे ऑडियंस होंगे, तो ये मधुबनी में मैक्स द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज इन मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, which these three districts constitute 55.8% of the banana production. When we look at mango, Darbhanga is the top producer, is Champaran, Muzaffarpur. When we know that lychee production, Muzaffarpur 48% of the lychee production, Wabha, Nalanda, the top producer, 1.71 lakh ton of the production comes from Nalanda, then Muzaffarpur and Rohtas. If you look at the vegetables, so these are the areas. So idea behind highlighting these numbers is that the speakers and the audience touch upon the opportunity that these things create for the agri startup system. And if we look at the vegetables, so we have alluvial soil and availability of water is suitable for cultivation of vegetables, and that cultivation comes at a lower cost. There are studies
which show that the cultivation cost is lower in Bihar compared to the say other parts of the country. And major vegetables which are produced here are potato, onion, tomato, cauliflower, cabbage, and the brinjal. So potato, Patna, Nalanda, Samastipur; onion, Nalanda, West Champaran, Patna; cauliflower, Vaishali, Katihar, Nalanda; brinjal, Patna, Begusarai. Other is the floriculture is an important sector in Bihar for its implication for higher agriculture earning, and especially for a small and marginal farmer. You don't need huge land to engage into production of the flowers also. So on commercial scale, farmers in Bihar are cultivating rose, tuberose, marigold, and jasmine. Other than this, in a small pockets, there are case studies which keeps coming on that people are engaged into medicinal plants, aromatic plants, honey, tea in Kishanganj areas also have been adopted by farmers, and although these are at a lower scale. Interesting things. We have now GI tag for following items. Maybe may have missed some of them, but the makhana, which is produced in 11 districts, I mean, at some scale lower. Shahi Lichi, Jardalu Aam, Maghi Pan, and Katarni Chawal. So we have now GI tags for this. So with this background, I mean, the brief introduction about this. One thing that I guess I have missed is animal husbandry. So the animal husbandry, which adds to the income to the farmers who are into the say agricultural activity, and helps in covering uncertainty caused by the climatic conditions. And over the years, the demand for the livestock product has also gone up on account of rising income, changing food habits, and their nutritional values. And that goes for the dairying and fisheries also. The sectors, apart from these, agricultural inputs like seeds, fertilizers, farm machinery, storage and warehouse, procurement of outputs. So these are some of the, brief outline that I could think of to present before the August audience and the speakers also. Now, what I'll do is that I will request my distinguished speakers to share their views. I request them to enlighten us with their experiences, not only related to the startup ecosystem, but also the value addition in the supply chain system related to agriculture that the people listening to you and the others can do. So I request now, I invite first Arvind Jha sir to share his views, and we will I request you to share your view in next 10 minutes, and then we'll move to. Thank you, sir. Thank you so much, Sudhanshu ji, and thank you also, Anup ji. I'm going to focus more on the startup insights and what is happening in agricultural startups. So, broadly, in the last 12, 13 years, we have about $100 billion invested in Indian startups, broadly. Okay. And I was looking at traction to see what has gone into the India agriculture sector. So only about 1.8 billion. So just 2% or less than 2% of all the money invested in startups has gone into agriculture. And if you assume that 50% or 55% people are involved with agriculture, clearly there's a huge imbalance. So what has happened is that the venture capital industry has chosen the 5 crore, 6 crore taxpayers that they have and their interests and their marketplaces as the first mover, and put all the money into making sure that your food supply is easy, your transportation is easy, your movies are easy, your life becomes easy, and you see all these e-commerce setups, all these marketplaces that have dominated these setups. Okay. I'm also surprised to see that government of India and actually a lot of state governments have done nothing on the agriculture investments in the last 10 years or so right now. So I started seeing what are the different models that have been invested in. So these $2 billion, where is it going? And what are the top 10 startups that we can think of, for example? So the good part is Dehat is one of the biggest startups with $222 million investment, headquartered in Patna, but most of the business is actually outside Bihar in the UP side. And very diverse right now, from farm inputs to seeds to advisory, all kinds of things they are doing there. Okay. $377 million investment in Ninja Card, which is basically a B2B vegetable, kind of marketplace was started by. And Bihar is probably first or second on vegetable
vegetable production in many of these vegetables that you mentioned, with unfortunately 45%, 46% wastage. So one can typically see, can you set up, ninja cart models across the state, and farm to table concept can be immediately carried on. But challenge are with capital, and we'll talk about, where the talent challenges are and the capital challenges are. A lot of money has gone into meat production and fresh meat distribution, way to cold, fresh to home. A lot of money has gone into warehousing, that kind of businesses. For example, Star Warehousing, $90 million funding, almost zero warehousing funding in Bihar, for that matter. I was very surprised to see that a seed company which only focuses on quality seeds, it's called Newsy We Do Seeds, has $105 million investments. And they are selling seeds, cotton, paddy, maize, jowar, bajra, mustard, not only in India, but also exporting seeds from India to other places. Um, Different models, rental of farm equipment, done very well. Vertical models, just like Manish is doing on Makhana hemp, which is bhang, which some of you would be understanding. Bombay Hemp Company is doing very well by just focusing on one vertical in that side. Okay, within Bihar, and we work with 3 or 4 startups in Bihar. Financial, we have a initiative in Begusarai where they're doing financial incentives with, supporting farmers, very small farmers with, 10, 12,000 rupees loans, so that, they don't have been exploited by these black marketeers. So every time, whether the Rabi season or the Kharif season, the prices, all the farm input starts to go up, DAP goes up, urea goes up, and they have to pay through their nose 40, 60%, black market. So by giving them some financial support, you can reduce that black market and make the life of the farmer a little easy. Already you motivate 600, 700 farmers, and can easily be scaled to thousands, tens of thousands of farmers, provided there's some credit available and some debt available for them. Croply we are working with, again, working on the distribution side of the problem. So farm input side, the distribution side, Asta Singh in Patna is doing a fantastic job with the Gram Shri initiative, looking at both dairy as well as fisheries and other models, and using a FPO model to grow many kinds of things. So while we see the imbalance, we also see that the government of Bihar has taken some very strong steps in the last 2 years, especially with the new policy of 2022. And it has really kicked off this whole ecosystem of creating co-working spaces, creating incubators, creating, these funding options. But overall, if I see a 500 crore, policy that was set up budget with about 50 or 60 crore deployment in a year, that is underperformance in my view. And I think we are missing a big opportunity by taking a big chunk of that money and creating an agro-specific fund where, a lot of these agro models we can start supporting at different levels. You support startups at the very early seed stage level, you can support people at the growth stage level, and then you can support people at the scale level. And Anubaji has a lot of experience on how to do that. But a really professional team which knows how investments can then spur on thousands of crores of value addition over time. That I think is missing in the policy. I also think the policy is a little conservative right now, in terms of using only AIF, policy registered, SEBI registered AIF to then support matching grants under the policy is restrictive, because the state of the ecosystem in Bihar, the startup ecosystem, is very early stage. We don't have a lot of the ecosystem parameters which are mature. For example, funding is a challenge. Role models are a challenge. Mentoring is a challenge. Risk appetite is a challenge. The preference for government job is still 60% people want to go for government jobs. Entrepreneurship itself has not yet developed in many senses. Um, Many of the ideas are copy paste ideas from national level. So is outside money, and forget about global money, is outside money coming to Bihar? No. The biggest investments that have happened in Bihar in the last 1 year have been done either by Jharkhand Angels with Jaji Store and stuff like that, and Karikeba, which Anuvaji has been part of, or Mithla Angels, which has been part of. But we are not considered as somebody who's taking good risks, and the government is very slow in using uh, our investments and our group of investors who all have excellent credentials in terms of saying, let's accelerate how we can do the government initiatives on the startup side.
So overall, I think that the opportunity is very large. Everybody understands the opportunity is very large, and you presented a very nice data of what Bihar agricultural opportunity looks like. India, I spoke to a very large investor about some of the work we are doing with some of these startups, and he said, "Look, unless you get me a project where I can invest 10 crores, I don't want to go in there and invest 1 crore. Where is a project that I can invest 10 crores? Now, to be able to get a project where I can invest 10 crores, and I know Manish is smiling because he can definitely consume 10 crores or even more on his project. We need to then work with 50 of these smaller projects, mentor them. How does that happen? Our incubation policies, government is setting up BHub, government is setting up incubators. No, it should be that colleges should be setting up incubators. It should be technical colleges. We have so many agricultural colleges. Each agriculture college should have an incubator. That incubator should have a capex. That incubator should have a opex support. That incubator should have a fund support so that they can start. Once 1,000 lotuses are blooming, then we will see 10 lotuses become 1,000 crore companies. So with that, I will stop because there are lots and lots of ideas. I could speak on this for many, many hours, but I know that Anuvaji is smiling at me and Manish is thinking when is my chance going to come. So I'll give it back to Manish. Thank you, sir. Thank you, sir. I mean, briefly highlighting the challenges and the way forward, and we'll come back to you after having a first round of speakers. So now I'll request Manish sir to share I mean, the challenges that he think that based on his experiences, and since he is working in Bihar, so I'll request you to share your thoughts in next. एंड हम लोग हिंदी अगर करेंगे तो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, और जहाँ नहीं हो सकता वहाँ हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट. थैंक यू सर. ठीक है, वो मिक्स रहेगा हिंदी इंग्लिश इंग्लिश. जी सर, जी सर. थैंक यू सो मच सुधांशु जी, आशुतोष जी, अरविंद जी, अनुभा जी, और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्री स्टार्टअप में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बैकग्राउंड में मैं मेरा जो जर्नी है बिहार में वो हम शुरू करते हैं 2015-16 से. मेरे लिए सेक्टर बिल्कुल नया था, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मैं कहीं बाहर काम करता था और मेरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का काम था. एग्रीकल्चर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, और मेरा बचपन भी जो है वो पटना, और पटना से आगे दिल्ली और फिर विदेश तक जाता था. तो गांव का बहुत कम एक्सपीरियंस था, लेकिन किसी वजह से मुझे आना पड़ा था, तो मुझे अच्छा लगा जस्ट फॉर अ चेंज. और मैंने ये देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ working experience for 60-70 years time, I thought and I seen that market बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग रहे हैं ऑपरेशन में, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड इस तरह का जो है वो कैनल बिजनेस में. तो हम लोग को ना एक नया प्रोडक्ट आता है कि आपको ये अब सेल करना है या इसको आपको मार्केट में लेके जाना है. So, every time you learn and you go in the market, and after maybe 2-3 years, 4 years, things change. तो ये थॉट आया कि क्या ऐसा हो सकता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट. तो वो था रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटी रहा है. उसमें भी चूंकि मैं बिल्डिंग प्रोडक्ट से था और ऑब्वियसली जिस सेक्टर में था वहाँ नहीं जाना चाहता था, तो आई चूज ये फूड सेक्टर. जब मैं बिहार मधुबनी आया, मेरा गांव बेनीपट्टी ब्लॉक में, तो मैंने देखा कि मेरे गांव के तालाब में मखाना हो रहा है. मतलब उसका जो सदियों से होता था, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो बचपन में उसका जो छोटा सा सॉफ्ट पार्ट होता है तो हम निकाल के खाते थे, तो बस मेमोरी थी मखाने. तो मैंने देखा कि मार्केट में मखाने बच जैसा हम देखते हैं 70 के बाद शुरू हुआ, वो नहीं. तो मैंने इसको कहा कि चलो, ये हमें पता था कि मखाना बहुत है, सुपर फूड है. इसके आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड अराउंड 8, which is highest in product, vegetarian और non-vegetarian. ये भी 16 इसमें पाया जाता है. तो इसमें चांस किया, और क्या था कि हम लोग भी जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाह रहे थे, तो एक एंकर प्रोडक्ट खाना इज द एंकर प्रोडक्ट फॉर अस. तो उससे हम लोगों ने अच्छा, मैं कभी भी क्वालिटी मार्केट में नहीं जाना चाहता था कि जस्ट बाइंग फ्रॉम ट्रेडर, आई मीन ट्रेडिंग, कि बाइंग फ्रॉम फार्मर्स और ट्रेडर्स एंड सेलिंग इन द मार्केट.
तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को कुछ अपना वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो हियर इट कम्स कि जब हम लोगों ने कहा कि चलो विदाउट वैल्यू ऐड आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है, somebody will else replace you। और अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं तो there is somebody else who can replace you and supply to any B2B buyer। तो हम लोगों ने अपना इसको सोचा कि इसको एक एंकर प्रोडक्ट लेके चलते हैं, एंड वेयर वी स्टार्टेड। इश्यूज बहुत आए, मुझे तो बहुत ज्यादा आया, क्योंकि मैं इस आई मीन ठीक एंसेस्टर्स हमारा यही के हैं, हमारा सब कुछ यही है, लेकिन मेरा बचपन यहाँ बीता नहीं, तो मुझे बहुत एक्सपोजर नहीं था। लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बात करने का मीनिंग है, और बहुत सारी चीजें ऐसा है। तो मैंने पहले 2 साल मार्केट स्टडी किया, रिसर्च किया, और देखा मार्केट में फार्म लेवल पे, तो खेती से लेकर सब कुछ। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि मखाना में वी आर दी ओनली कंपनी हु डज एवरीथिंग एंड टू एंड। मतलब हम लोग फार्मिंग से लेकर रिटेल तक, वैल्यू एडिशन से लेकर उसको सप्लाई चेन में कैसे डाल के कहाँ पे कैसे क्या पहुंचाना, ये सारा तक हम लोग करते हैं अंडर वन मैनेजमेंट, मित्तल नेचुरल्स। और हम लोग जैसे अनूप जी ने बोला कि मार्केटिंग तक, मतलब प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक सब कुछ हम लोग का इन हाउस होता है मित्तल नेचुरल अम्ब्रेला के नीचे। अब इसमें इश्यूज क्या है, तो चलो एक मखाना की हम बात कर रहे हैं, बट मखाने के अलावा हम एग्री एज ए होल बात करते हैं, एग्री इंडस्ट्री का, जो एग्री, क्योंकि बिहार का जो स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर है, राइट। और कोई इंडस्ट्री तो ऐसा है नहीं बिहार में जिसको हम कह सके कि बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है अदर देन सर्विस इंडस्ट्री। तो जो एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रेंथ है, तो क्यों ना हम उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ प्ले करें। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है एग्री प्रोड्यूस, जो आपने बताया कि हम लोग बहुत चीजों में नंबर 1 है, बहुत चीजों में नंबर 3, 2, 4, 5 है। मतलब अगर आप देखें करीब 15 ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स में, मखाना, मशरूम एंड ऑल। हम लोग नंबर 1 से नंबर 5 तक हैं ऑल इंडिया। जबकि हम ये भी देखते हैं कि हमारा कोई फोकस एज सच नहीं है। जो माइग्रेशन है मेजरली वो लैंड ओनर्स का है, राइट। और उसके पीछे लैंड ओनर्स का माइग्रेशन क्यों है, क्योंकि जो लेबर थी वो बाहर चली गई, उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे, और लैंड ओनर्स ने कभी से खुद से खेती नहीं की। एक तो लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है, खासकर आप नॉर्थ बिहार में आइएगा तो मेरे ख्याल से समस्तीपुर में शायद होगा भी, डेफिनेटली दरभंगा, मधुबनी या इस पार्ट सीतामढ़ी वगैरह में नहीं है। तो जब लैंड होल्डिंग नहीं है, छोटा लैंड है, तो वहां पे खेती जो है वो वायबल नहीं होता किसी के लिए भी करना। तो इवेंचुअली 1 साल 2 साल 3 साल कोशिश करता है, उसके ही जो फार्मर्स अपने बच्चों को ही बोलते हैं तो बाहर चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है। जबकि मेरा मानना है कि फार्मिंग से अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड उसको हम लोग अगर ठीक से प्लान करके करें, लार्जर बेस लेके चले। छोटे लैंड होल्डिंग में नहीं होगा। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत जरूरी है। इस किसी भी मखाना एक प्रोडक्ट हो सकता है, बट हम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, चाहे वो आलू हो या धान हो सकता है, मेज है, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, एंड वो सारा कुछ हो सकता है। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि सप्लाई चेन भी उतना ही इफेक्टिव होना जरूरी है। अगर हम, जैसे आपने कहा, सब्जी और बहुत चीजें बर्बाद हो जाती, खराब हो जाता है, शहरों में इसका बहुत डिमांड है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ अबंडन है, ऐसा नहीं कि यहाँ सस्ता है, लेकिन हम अगर प्रोड्यूस करें तो ये प्रॉफिटेबल है, तो ये सबके लिए प्रॉफिटेबल है। जैसे हम बात करते हैं फार्मर्स के लिए, आज फार्मर्स को हमारे यहाँ मंडी ऐसा सच नहीं है, पैक्स है, बट मेरे ख्याल से पैक्स बहुत इफेक्टिव नहीं है शायद, या बहुत कम क्वांटिटी में मटेरियल लेती है और बहुत टाइम शायद पेमेंट भी करती है। तो जो मिडिल मैन है, जो मार्केट के लोग हैं, वो उनसे सस्ता में उठाते हैं, प्रिटेक्स्ट ऑफ कि आपको हम पेमेंट कर देते हैं तुरंत, 2, 3, 4 दिन में वो भी दे देते होंगे आई गेस। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रेंथन करें इसको कि जैसे हम कहते हैं लोकली प्रोड्यूस, हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड है, मतलब लैंड फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, पीएच लेवल 6.5 के आसपास है। और जब भी बाढ़ आता है तो हम वहां से हिमालय से मिनरल्स लेके आता है, तो जिस साल बाढ़ आती है उस साल बहुत ज्यादा फसल होता है। मतलब बाढ़ का जो नुकसान है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे फसल रुक बच जाता है वहां पे बम्पर क्रॉप होता है। और ये जो भी किसान इस क्षेत्र से हैं वो जानते होंगे इसको। तो हम अगर उसको स्ट्रेंथन कर पाए कि हम ठीक है, हम फार्मर्स को बोलें कि ठीक है हमारे लिए आप प्रोड्यूस करो सर्टेन क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात करेंगे, ठीक है हमारे लिए आप मखाना कीजिए, या हमारे लिए आप पर्टिकुलर वैरायटी का धान कीजिए, या अलसी कीजिए, इस तरह की जो भी चीजें हैं, फ्लैक्सी, तीसी वगैरह। तो हम अगर ये प्रोड्यूस करें, और हम जैसे हमने एक अरेर बेनीपट्टी ब्लॉक में एक पंचायत है, यहाँ पे मैंने प्लांट लगाया है। प्लांट प्राइमरली मखाना के लिए है, बट कोई फूड प्रोड्यूस आप करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो सिर्फ मखाना नहीं होता, उससे बहुत कुछ और भी हो सकता है।
related machines है, अगर जब पैकिंग मशीन है तो they can pack anything, you know, not only मखाना but they can also grains and staples and other things. तो हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि हम लोग वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है फॉर फार्मर्स कि आप हमको प्रोड्यूस दीजिए। और हमने एक एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हमने जेवी किया हुआ है, एमओयू किया हुआ है कि आप हमको प्रोड्यूस दीजिए, आपका प्रोड्यूस फूड प्रोड्यूस है, उसको हम प्रोसेस करेंगे। एकेंथी का फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेनीपट्टी ब्लॉक में ही है, उनसे हम लेते हैं। और भी बहुत एफपीओ के साथ हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, या डायरेक्ट किसान के साथ भी हम लोग लेते हैं। हम यहाँ प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद उसको हम मार्केट में चैनल बिजनेस में लेके जाएंगे, इन बिहार नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। डिफरेंस क्या होता है कि आपको पैकेजिंग उस हिसाब से रखना होगा कि आपका प्रोड्यूस जब दूर जाए या लंबे टाइम के रखना पड़े तो खराब ना हो। तो एक तो ये हो गया। जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो है अगर हम लोग उसका सप्लाई चेन और मंडी तक पहुंचा पाए जस्ट विद इन टाइम तो बहुत इफेक्टिव होगा। अब मैं मिडिल मैन की बात नहीं करता, लेकिन इसमें एक चीज होता है कि प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस है, फार्म प्रोड्यूस, चाहे वो प्रोसेस होके आए या रॉ आए, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। उसमें जितने भी चैनल्स ऐड होंगे उतना डिले होगा, उतना मार्जिन ऐड होगा, उतना कॉस्ट होगा, राइट। तो अभी मैं इतना मैं क्लोज कर रहा हूं और जब कुछ नेक्स्ट डिस्कशन होगा तो प्रॉब्ली आई कैन ऐड सम मोर। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप अपना अनुभव और कई सारे चैलेंजेस, इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो एक कहानी निकल करके आती है। जो कोई नया अगर कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं और कुछ बनता है। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अनुभव जी से अपना अनुभव, नॉट ओनली एज एंजल इन्वेस्टर but also as someone who has observed closely developments in Bihar. So how people or the entrepreneurs are mostly young persons कैसे इकोसिस्टम की अनुपस्थिति में पूंजी की उपलब्धता के साथ साथ नए आइडियाज के साथ काम करें और आगे बढ़ें। थैंक यू अनुवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद LID मुझे ये आपने मंच दिया, सो आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस बिकॉज मैं शुरू से ही मेरा बहुत ज़्यादा पैशन रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड आई हैव बीन वर्किंग इन व्हाटएवर कैपेसिटी आई एम एबल टू to contribute to the development of Bihar. So I'm wearing two hats as of now. एक तो मैं सिडबी की बिहार झारखंड की रीजनल हेड हूँ, जनरल मैनेजर एंड रीजनल हेड, और मैं दिल्ली की रीजनल हेड थी इसके पहले, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट बिहार का जो हमारा फाइनेंसिंग है दैट वुड बी नॉट मोर देन 2 to 3% ऑफ व्हाट आई वाज हैंडलिंग द बुक साइज इन दिल्ली। लेकिन मैं बाय चॉइस में बिहार आई। तो एक तो वो हैट है, और दूसरा हैट जो मैंने एज एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के फाउंडर के रूप में, जब मैं 3 साल के सबैटिकल पे थी सिडबी से, 3 साल की छुट्टी पे थी, तो लोग अपना कुछ काम कर सकते थे उसमें। तो मैंने 2 साल यूनाइटेड नेशंस में काम किया, 1 साल मैंने करेकेबा वेंचर्स को एस्टैब्लिश किया मैंने, जो कि मैं I can take a lot of pride in saying that हम लोग बिहार में एटलीस्ट नंबर 1 प्लेटफॉर्म हम हैं। 18 इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं, और हम सिर्फ बिहार के स्टार्टअप्स को नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के स्टार्टअप्स को एक प्रायोरिटी हम ज़रूर देते हैं, सो दैट बिहार के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू मेंटरशिप, एक्सेस टू एडवाइजरी, ये सब मिल सके। अरविंद जी हमसे काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं एज एन एडवाइज़र ऑल्सो। झारखंड एंजल के साथ, झारखंड एंजल ने जैसे 4 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हम लोग साथ साथ ही शुरू हुए थे, उसमें से 2 उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे किए हैं। झाजी स्टोर हमने साथ में इन्वेस्ट किया था, जो कि अगेन फूड प्रोसेसिंग में है। झाजी स्टोर जो शार्क टैंक पे वो रेज नहीं कर पाए थे, तो फिर हम उनको लेकर के आए और हमने उनके लिए रेज किया। एग्रीकल्चर जो है, मैं एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने 21 में जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं वो लोग थोड़ा वेट कर लें, शायद बाद में सवाल लेंगे उनके। जब अर्ली 21 में जब मैं करेकेबा सेटअप कर रही थी, तो मैंने एक न्यूज़ आइटम देखा कि टॉप 10 सिटीज़ फॉर स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया, एंड उसमें पटना का नाम था। सो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि पटना कैसे आ गया टॉप 10 सिटीज़ में। फिर जब मैंने डिग किया तो मैंने देखा कि उस साल देहात ने कुछ 100 मिलियन रेज किया था, एंड दैट्स व्हाई
because of one startup, and probably Ergos जो किशोर झा का startup है, probably because of that पटना featured in top 10 cities for startup funding. तो ये बहुत skewed एक spike था. तो ये दिस इज नॉट अ जनरल सिनेरियो, ऐसा है नहीं बिहार में कि स्टार्टअप फंडिंग में टॉप 10 में पटना आ जाए, ऐसा है नहीं. एक्चुअली देहात का कॉर्पोरेट ऑफिस जरूर पटना में है, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो अक्रॉस इंडिया है, विच इज़ वेरी गुड. बिहार स्टार्टअप इज डूइंग सो वेल इन यू नो नेशनली एंड प्रोबेबली लेटर ऑन इंटरनेशनली एज वेल. लेकिन फैक्ट ये है कि जो बिहार के जो स्टार्टअप्स हैं ये बहुत नेसेंट इकोसिस्टम है, जैसा अरविंद जी ने कहा. और अरविंद जी ने काफ़ी सारी जानकारियाँ शेयर की हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी. एक चीज़ मैं मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मैंने एमएसएमई फंडिंग भी की है और मैंने एग्री में भी फंडिंग किया है, एग्री प्रोसेसिंग में ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, और मैंने स्टार्टअप की फंडिंग भी की है. तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो न्यूएंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. आप एक कन्वेंशनल एमएसएमई हो सकते हैं, आप एक स्टेडी ग्रोथ पाथ पे हो सकते हैं, 15-20-25% आपका ग्रोथ हो रहा है. बहुत सारे हमारे एमएसएमई कस्टमर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा न सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, बल्कि आप बहुत वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपने इकोसिस्टम के लिए. इसमें कोई हार्म नहीं है. सबको स्टार्टअप बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह की ग्रोथ स्टोरी चाहिए इन्वेस्टर्स को, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें कि स्टार्टअप बहुत हाई रिस्क एसेट क्लास होता है इन्वेस्टर्स के लिए. तो हर स्टार्टअप की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें वो एक 100 टाइम्स का स्केल अप खोजते हैं कि अगर उनके 10, 12, 20 इन्वेस्टमेंट बेकार हो गए, अगर क्योंकि फेलियर रेट बहुत हाई है, तो भी एक कोई ऐसा होगा जो उनको बहुत हाई रिटर्न्स दे जाएगा. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टअप के तहत ही काम करें. अगर आप अच्छा एग्री बिजनेस चला रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो देयर इज नो हार्म इन इट. इट्स वेरी गुड, इट इज़ लेस रिस्की, और आप अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं. जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और हम एग्जीक्यूशन और स्केल अप की बात करते हैं. मैं बार बार वही कहती हूँ कि आइडिया जो है वो सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, वो कहीं से कॉपी किया भी हो सकता है. बहुत सारे स्टार्टअप्स हम देखते हैं जो विदेश का आइडिया लेकर के आए और बहुत सक्सेसफुल हुए यहाँ पर. लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन अगर सॉलिड नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से रोबस्ट तरीके से और टेक लेवल के साथ अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप स्टार्टअप as a startup then you are a failure. There's a lot of confidence I can say this. तो हमें ये देखना होगा कि बिहार जैसे स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो यूथ हमारे साथ अभी हैं और जो लोग बिहार में एग्री सेक्टर में काम करना चाहते हैं. और मैं बहुत अपॉल्ड होती हूँ देख करके कि जो सरकारी नौकरी के लिए यहाँ जो क्रेज़ है. मेरे हस्बैंड अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, और जब मैं सरकारी नौकरी का क्रेज़ देखती हूँ उनके यहाँ, जिस तरह के मतलब जो कॉन्वर्सेशन का जो लेवल है, तो मुझे बहुत दुख होता है देख करके, क्योंकि सरकारी नौकरी के भरोसे आप लोग प्लीज़ मत रहिए. जहाँ पे 1000 जॉब्स के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हों, तो 9,99,000 को फेल होना है. तो प्लीज़ आई कीप सेइंग दिस दैट प्लीज़ डोंट रन आफ्टर सरकारी नौकरी. एनीवेज, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की हम बात करें बिहार में कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में जो डेटा मुझे मिला है कि 80% जो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. तो हमें देखना है कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत रेम्यूनरेटिव नहीं होता है अगर उसमें एग्रो प्रोसेसिंग ना हो. एक बार मैं भागलपुर से नौगछिया ट्रैवल कर रही थी, बहुत पुरानी बात है, 2005 की बात है. तो लोग मतलब बच्चे मिले जो केला बेच रहे थे सड़क के किनारे, एंड टोकरी भर केला वो शायद 2 रुपये 5 रुपये में देने के लिए तैयार थे. तो इट वाज वेरी सैड कि केला एक बहुत पेरिशेबल गुड है और उसके लिए कोई भी प्रोसेसिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ये इतना जो प्रोड्यूस वहाँ पे इतना फर्टाइल लैंड है वो बिल्कुल वेस्ट जा रहा है. एनीथिंग दे वर रेडी टू सेल इट फॉर एनी डैम अमाउंट. सो तो इसलिए आपको एग्री का जो वैल्यू चेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो सप्लाई चेन है और जो एग्रीकल्चर का जो वैल्यू चेन है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग, in terms of taking it forward to logistics, and then making it part of the national supply chain or even global supply chain. इस बार मैं
बहुत तरस के रह गई कि मेरे बच्चों ने मालदा आम नहीं खाया और हम लोग यहाँ पे खा रहे थे मालदा आम। मेरे बच्चे यूएस में थे और वी कांट टेक इट इन फ्लाइट एंड ऑल। तो हम कैसे, मतलब जो मालदा हमारा जीआई टैग है, उस मालदा को अगर हम विदेश नहीं ले जा सकते हैं, लीची को हम नहीं ले जा सकते हैं, मानसून विदेशों में। तो दिस वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो ये भी है कि इतने लेयर हैं एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में। अगर हम सिर्फ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, क्रॉपिंग है, सिर्फ उसकी बात भी अगर करें, नॉट टॉकिंग अबाउट अभी हम प्रोसेसिंग की बात अगर हटा दें, तो भी एग्री के वैल्यू चेन में इतने लेयर्स हैं कि किसान को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो बहुत पुअर मिलता है। मेरे एक एमडीए के मेरे बैचमेट हैं, वो न्यूट्रांटा नाम की कंपनी है, सीड की कंपनी है, कुछ 50 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने बोला कि जिस वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 21 रुपए है, उस वीट के लिए बिहार में हरियाणा में मिल जाता है किसानों को, बिहार में वो भी नहीं मिलता है, शायद 17-18 रुपए मिलता है। तो वो 17-18 रुपए किलो किसान वीट बेचता है, और जब उसे वीट की जरूरत होती है अपने सीड्स लगाने की, जब वो फिर से क्रॉप में आता है अगले सीजन में, तो 70 रुपए किलो वो वीट खरीदता है। इसलिए क्योंकि उसके पास फैसिलिटी नहीं है कि वो सीड्स कर सके, उसकी क्वालिटी इंश्योर कर सके, उसके लिए उसको रोडेंट से, उसको पेस्ट से बचा सके। तो ये देखिए कि ये इतना ज्यादा डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि इतनी सारी लेयर्स हैं एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में कि किसान का रेम्यूनरेशन बहुत कम है, और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो हम फार्म टू फोक बोलते हैं, जो खाना आता है, वो भी जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी महंगा मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो इस सप्लाई चेन का जो है कि जो लेयर्स हैं, इनको अगर कम कर सकें, वो एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जिससे किसान का रेम्यूनरेशन बढ़े, और जो हमारे जो टेबल पे खाना आ रहा है, जो हम जैसे एंड कंज्यूमर्स हैं, हमें एक रीजनेबल प्राइस पे वो खाना मिल सके। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी बहुत ज्यादा मैं देख रही थी कि एग्रीकल्चर में जो वीसी इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में लास्ट 2022 में, तो ये करीब 2.4 बिलियन डॉलर्स का हुआ, करीब 20,000 करोड़ का हुआ है। उसके पहले साल 3.6 बिलियन था, जिससे कि थोड़ा कम हुआ है। 21 में वो स्टार्टअप का बहुत बूम ईयर था। तो उसका 2.4 बिलियन का जो मैक्सिमम जो फंडिंग जो गई है, वो क्लाइमेट में गई है। और क्लाइमेट टेक बड़ा एरिया हम सब देख रहे हैं, बिहार अभी ड्रॉट से जूझने वाला है। राइस मिल के कस्टमर है, वो मेरे ऑफिस में आके बोल रहे थे, अगर 15 दिन बारिश नहीं हुई तो हमें शायद करना पड़ेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज है, इट इज वेरी रियल। मैंने यूएन एनवायरनमेंट में काम किया है 2 साल, और मैंने बहुत क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि क्लाइमेट से जो है ना, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम मिटिगेशन की बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट कर सकें, उसको हम लोग रोक सकें, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल कम करें, इस तरह के जो मेजर्स हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली अडेप्टेशन होता है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, तो हमें उसमें अडाप्ट करना है, एंड क्रॉस कटिंग होता है, जो मिटिगेशन अडेप्टेशन दोनों चीजें होती हैं। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो है, बिहार में हम जानते हैं हर साल फ्लड आता है। अभी क्या हो रहा है कि आपका धीरे धीरे जो क्रॉप का सीजन है वो श्रिंक कर रहा है, आपके विंटर्स छोटे हो रहे हैं, समर्स आपके लंबे हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी से अभी जूझ रहे हैं, मैं पटना में बैठी हूँ अभी। तो अभी ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना, कि जो रेजिलिएंट वैरायटीज है उनको लेकर के आना, और जो डिफरेंट इनपुट्स हो सकते हैं फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम बोलते हैं जैसे, तो इस तरह के मेजर्स को इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। और इनके लिए डेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है हमारे पास, एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दैट मैटर। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने मार्केटिंग की बात की, मैंने क्लाइमेट की बात की, मैंने सप्लाई चेन की बात की। तो दीज आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हमें बिहार में जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि हम जानते हैं लीची बिहार में नंबर 1 है, बिहार नंबर 1 है। और मैं गूगल कर रही थी इसके पहले कि बिहार टॉप्स इन, मतलब किन किन क्रॉप्स में टॉप करता है, मुझे कुछ चाहिए था बोलने के लिए, तो पहला जो रिजल्ट आया वो गैंगस्टर्स का नाम आ रहा था उसमें। तो दुर्भाग्य है हमारा कि बिहार को इन चीज़ों से जाना जाता है।
हमने एज एन MSME हमने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अभी हमने वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, हमने अभी फॉरबिसगंज में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो नेपाल का नंबर 1 नूडल ब्रांड है, वो बनाते हैं रंभा नूडल। तो हमने 18 करोड़ का हमने उनको किया है। इस तरह से हमारे पास राइस मिल्स में हमने किया। राइस मिल्स में अभी एक नई अपॉर्चुनिटी ये आई है कि गवर्नमेंट इज नाउ इंसिस्टिंग ऑन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें फोर्टिफाइड राइस पे गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि हम फोर्टिफाइड राइस ही लेंगे PDS में, और वो 1% होता है, मतलब 100 दाने में एक दाना फोर्टिफाइड होना चाहिए। तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिहार के साथ साथ और भी कई स्टेट्स में ये पॉलिसी आई है, तो दैट कुड बी अ गुड प्रोडक्ट टू वेंचर इनटू। मखाना, एज वी ऑल नो, बिहार नंबर 1 ही नहीं है, बिहार मतलब प्रोबेबली द ओनली स्केल जो प्रोड्यूस करता है वो स्टेट है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और मैं 2005 में बिहार से ट्रांसफ़र हुई थी, जब मैं यहाँ पे सिडबी की हेड थी। उस ज़माने में छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, तो हमने मशरूम में बहुत इन्वेस्ट किया था उस समय। हमने स्पॉन कल्चर, उसका रिजल्ट हमें अभी देखने मिल रहा है कि बिहार मशरूम प्रोडक्शन में नंबर 1 है। हमने हनी में बहुत इन्वेस्ट किया था, साइलेंटली हम लोग काम कर रहे थे, ज़मीन तैयार कर रहे थे, तो बहुत स्ट्रांगली हमने काम किया था हनी में। उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है, बहुत हाई हनी में बिहार बहुत अच्छे रैंक पर है। फ्रूट्स, पाइनएप्पल, आई डिडंट नो कि पाइनएप्पल में बिहार 3 नंबर पे है, नंबर 3 है। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैंने बताई, और जो VCs जो एक और मुझे कुछ एग्रीटेक जो फाउंडर्स हैं उनसे मैंने एक बार ऐसे ही डिस्कस किया था। तो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए अगर सिंगल विंडो सॉल्यूशन दें, तो इट्स लाइक अ देहात मॉडल कि सब कुछ फार्मर्स को एक जगह पे मिल रहा है। अगर वो चाहे फार्म इनपुट्स हो, चाहे वो लीज पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड, चाहे वो दूसरे तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हो, तो वो एक बड़ा मतलब एरिया हो सकता है। क्योंकि ये सेक्टर इतना बड़ा है कि एक देहात के से अगर 10 देहात भी हो जाए तो भी इस सेक्टर में जगह होगी कि लोग स्केल अप कर पाएंगे। तो these are a few of my thoughts. I think I've been of use. अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ शायद जानकारी कोई आपके काम आ सके इसमें से. So thank you very much for having me here, and I'm open for questions. Thank you, ma'am. It was interesting to listen to you. You have touched upon many things, starting from ideas to making arrangement for the funds, and the challenges that. सुधांशु जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. Hello. Thank you, ma'am. Sharing your views regarding to सुधांशु जी, आप ये ईयरफोन हटा ले तो शायद आवाज क्लियर आएगी. और एक चीज और मैं बोलूं कि मैं देख रही हूँ पूरे ऑडियंस में शायद एक ही महिला है, और स्पीकर में ऑफकोर्स मैं हूँ, बट थोड़ा सा अगर लड़कियों का, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं तो शायद बहुत अच्छी. श्योर मैम, टेक केयर. नहीं सुधांशु जी, आवाज में ना नॉइज है थोड़ा सा. ईयरफोन प्लीज हटा लीजिए ना, अगर पॉसिबल हो तो. आवाज. हेलो. आ रही आवाज? अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट. थैंक यू. तो अभी हम दूसरे राउंड में आने वाले थे मैम उस मुद्दे पर भी. तो इससे पहले एक चीज जो हमारे मन में है और कई चीजें जो हमने ऑब्जर्व किया है और बातचीत के क्रम में भी आती है कि इकोसिस्टम एब्सेंट है. अगर बिहार के उसमें लें तो इंक्यूबेशन, अरविंद झा सर ने भी कहा कि ये चीजें कॉलेजेस में होनी चाहिए, न कि गवर्नमेंट लेवल से होनी चाहिए. यहाँ हम देखेंगे जो नए लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनने जाते हैं, उनसे अगर बातचीत कुछ लोगों से हमने करने की कोशिश की, तो उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट सब्सिडी या गवर्नमेंट मोटिवेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज वो फाइनेंशियल हेल्प के रूप में आता है. तो और दूसरा पहलू ये आता है कि कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मे बी मैं गलत होऊंगा, लेकिन कई बार ये होता है कि जो बिजनेस आइडियाज है उनमें इमोशंस की जगह कम होती है कि मुझे बिहार पसंद है इसलिए बिहार में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि बिहार में अपॉर्चुनिटी है मेरे विचार के हिसाब से. द इन्वेस्टमेंट वो रिफ्लेक्ट हो रही है. कई स्टार्टअप जिसने बिहार में बना है जो आउटसाइड द स्टेट्स ज्यादा है कंपेयर टू द स्टेट्स. तो मैं अरविंद झा सर अगर हैं
अरविंद झा सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ अपने आप को सीमित करके रखना चाहिए, रादर देन बार हमने कहा कि आप ये चीजें शुरू करेंगे और इस पर हम ये सब्सिडी देंगे, उसकी बजाय लोगों को सरकार के बजाय ऐसे ऐसे विचारों पर काम करना चाहिए जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिले। सुधांशु जी, ऐसा है कि मैं मानता हूं कि सरकार का रोल है एक तरह से कैटलिस्ट बनाना, एक तरह से जमीन तैयार करना और एक देना ताकि एंटरप्रेन्योर्स आके यहाँ पे काम करना शुरू करें। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर 10-12 लेयर्स हैं, बड़े लेयर्स हैं, एग्रीकल्चरल टैग की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है, चाहे वो वेयर हाउसिंग का हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, एग्रो पार्क का हो, या मान लीजिए हम आप और आपने भी बताया कि मुजफ्फरपुर एरिया में, समस्तीपुर एरिया में, मधुबनी एरिया में केला बहुत है। लेकिन अगर हम सोचें कि केला के आसपास में हम एक पूरा एग्रो पार्क बनाते हैं और 30-40 इन्वेस्टर, 30-40 एंटरप्रेन्योर्स का वहाँ पे बनाते हैं, तो उनका जो 10 करोड़ से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट कल्चर मिसिंग है। हमारे बैंक्स जो हैं बिल्कुल क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, एनबीएफसी जो है वो नहीं दे रहे हैं, माइक्रो क्रेडिट जो है 20-24% पे चल रहा है, तो 20-24% पे कौन जाके एंटरप्रेन्योर बनाएगा? तो एक तरह से सरकार को ये लंबा 20-25 साल का विजन लेके चलना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और हम इसमें 400-500 करोड़ हर साल डालेंगे, 10 साल डालेंगे, तो फिर जाके एक हमारे पास 20,000-50,000 करोड़ का इकोनॉमी पैदा होगा। और रिस्क कैपिटल सरकार से आना पड़ेगा, और सरकार हो चाहे वो सरकार किसी इंटरनेशनल एजेंसी से, यूएसएड से ला सकती है, डब्ल्यूएचओ से, यूनाइटेड नेशंस के यूएनडीपी के प्रोग्राम से वहाँ से लेके आ सकती है। बहुत सारा पैसा जो है हो सकता है कि हमारे जो प्रवासी बिहार के लोग हैं वो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हों, उनको कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरह से, उनको कोई टैक्स बेनिफिट की तरह से, उनको किसी भी तरह का बेनिफिट बनाना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार का जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो थोड़ा छोटा सोच रहे हैं, उनका सोच थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा उनको अपना, कि मैं 10-15-20 साल में 1 लाख करोड़ का कैसे बिजनेस करने वाला हूँ वहाँ पे। अभी 100 करोड़ 1000 करोड़ से वाला है नहीं। और हम देखें जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास बोले हमको 1 करोड़ आप दिला दीजिए, 1 करोड़ में हम 10,000 फार्मर तक पहुंच जाएंगे। हमें 10 लाख फार्मर तक पहुंचना है, तो हमें एक ऐसा स्कीम चाहिए कि उसको, अगर उसका मॉडल एक्सपेरिमेंटल मॉडल ठीक लग रहा है हमें कि हाँ 1,000 फार्मर्स को हेल्प कर पा रहा है, तो हम उसको 2 स्टेज में कैलकुलेटेड रिस्क लेके पहले 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 25 करोड़ लेके दिखाएं कि क्या वो एक हाथ बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार में एक ऐसी टीम हो जो कि मेन लेयर्स को आइडेंटिफाई करे, चाहे वो फार्म इनपुट साइड हो, चाहे वो फाइनेंसिंग साइड हो, चाहे कैपेसिटी साइड हो, चाहे मार्केटिंग साइड हो, और हर इनपुट साइड को एक तरह से डेवलप किया जाए साथ में। और ये लंबा प्रोजेक्ट होने वाला है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट होने वाला है। थैंक यू अरविंद सर। मनीष सर आप हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। हाँ जी, तो इसी संदर्भ में अगर जैसे एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप बाहर गए और बाहर आकर के यहाँ आपने अपना कार्य प्रारंभ किया और उसमें सफलता हासिल की, तो अगर आप यहीं होते, मान लीजिए कि कई सारे लोग यहाँ होंगे और आप उनसे आपका इंटरेक्शन होता होगा कि लोगों से बातचीत करके ये चीजें होती होंगी, तो जैसे हमने कहा कि हमने लोगों से बातचीत किया तो लोगों का आइडिया का जो ओरिएंटेशन है वो उधर जाता है जिस स्कीम के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी लेकर के आती है। जैसे राइस मिल के लिए एक बार सरकार ने सब्सिडी अनाउंस किया, लोगों ने राइस मिल में इन्वेस्ट किया, ओवर टाइम क्या हुआ, राइस मिल के उसना चावल का प्रेफरेंस करके अब ये समस्या आने लगी कई लोगों को जिन्होंने पीछे इन्वेस्ट किया था चावल में, अब नए इन्वेस्टर्स। तो आप जो नए लोग चाहेंगे नौकरी, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग जो व्यवसाय या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो उनको अपने आइडिया किन आधार पर, किन चीजों पर आधार बेस करना चाहिए सो दैट दे टेस्ट सम अमाउंट ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं मोरलेस, मुझे लगता है कि ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नो एंड टू डिस्कस, और शायद बहुत सारे क्वेश्चन शायद आएंगे। सबसे बड़ी बात है जैसे आपने कहा कि उसना चावल के लिए कहा और वो प्लांट जो है अबंडन या प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो कभी भी कोई भी स्टार्टअप वो स्कीम और बेनिफिट या स्टार्टअप फंड लेने के लिए ना करे, वो श्योर शॉर्ट फेलियर है।
100% फेलियर है, ये मान के चलें। फेलियर का मतलब है जहां आप आज खड़े हैं 2 साल 5 साल बाद वहीं खड़े रहेंगे, बट माइनस लॉट ऑफ लोन्स एंड लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर हेड, ऑन योर शोल्डर, राइट। तो एक तो है कि आप स्कीम के रिलेटेड काम ना करें कि जो स्कीम चल रहा है, जैसे भी आपने कहा कि स्कीम चल रहा था, बहुत सारा स्कीम आता है कि चलो अभी बिहार में हम देख रहे हैं कि पीछे सबको 10-10 लाख रुपया दिया गया है कि 5 लाख सब्सिडी है, मतलब फ्री है, ग्रांट है, और 5 लाख में कुछ परसेंटेज है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें से आधा % भी सक्सेस नहीं होगा। सरकार ने अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए कि भाई हम लोग कर रहे हैं, अगला 4 साल 5 साल उसने बाय कर लिया है, यू नो, फ्रॉम क्रिटिक्स, कि हम तो दे रहे हैं, 5 साल बाद क्या होगा, अगेन वो फिर वापस जो है फॉल फ्लैट होने वाला है। तो दैट्स वन। दूसरी बात क्या है कि ये स्टार्टअप जो है वो फैशन बन गया है, एवरीबॉडी इज डूइंग स्टार्टअप। जैसे अनुभा जी ने कहा कि स्टार्टअप इज अ हाई रिस्क एरिया, तो ये इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबता, आपका कैरियर डूबता है। और ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर आपका पैसा मतलब छोड़ देगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको है। तो पैसा कब लेना है, कितना लेना है, कब इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में एंट्री कराना, इज ऑल इंपॉर्टेंट। इस पे जरूर सीखिए, इस पे बात कीजिए और इसका आप एक्सपीरियंस लीजिए, ना कि फला सक्सेस हो गया इसलिए हमको वही करना चाहिए। सक्सेस का मतलब हम आप सभी देख रहे हैं, भी जुड़े हुए लोग हैं वो देख रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था कि आउट ऑफ 20 फिनटेक, उसमें से शायद 2 ही सक्सेसफुल है, या जो पॉजिटिव में चला, ऑल नेगेटिव, यू नेम इट। इवन एवरीबॉडी टॉक अबाउट देहात ह्यूज लॉस में है। तो अगर लॉस करके अगर हमको एक नाम आना है और हमारे हिसाब से होना है, तो मैं उसको बिजनेस नहीं मानता। पॉइंट नंबर 1। अब जैसे मुझसे पूछा, तो हमारे बिजनेस में किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। मैं ग्रेजुअली मैं ले सकता था, मेरा प्रोफाइल रहा है, मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं आराम से कन्विंस कर सकता हूँ लोगों को, मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लेता। मुझे पता है मुझे कब लेना है। तो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको लेना कब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कब क्या करना चाहिए, तो उससे पहले तो प्लान बनाए कि आपको करना क्या है। प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी बनाए। जैसे किसी ने मशीन लगाया, तो अब मशीन लगाया, उसका चावल आ गया, तो उसका मशीन, तो उनको ऐसा कुछ करना चाहिए था, कम से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मशीन चेंज कर ले, वो मशीन नया ले लें, सो दैट कि वो रिडंडेंट ना हो, मतलब वो सिस्टम में वापस आ सके। जैसे उन्होंने कहा कि फोर्टिफाइड राइस 1% मैंडेटरी हो गया है, कम से कम 1% तो होना चाहिए, तो स्टूडेंट मशीन लगा लें, उसमें कर लें। हालांकि फोर्टिफाइड राइस जब आया था तब ये हुआ था कि चावल का पाउडर बनाया जाएगा, आटा, उसमें कुछ जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स, उसको ऐड करके वापस चावल बनाया जाएगा एक्सट्रूड करके। लेकिन अब 1% हो गया, बिकॉज एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, होना वही चाहिए। पॉलिसी में भी शायद इस तरह का ही कुछ बातें थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो आप पॉलिसी बेस ना करके अपना, आपका जो इंस्टिंक्ट है उस पर काम कीजिए, इन्वेस्टर विल फॉलो यू। सुधांशु चौधरी, मैं एक जल्दी से बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मनीष बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। आपको स्टार्टअप अपने कस्टमर के लिए बनाना है कि मेरे कस्टमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, मेरे पास बड़ा मार्केट है और ये ओवर टाइम और बड़ा मार्केट बन जाएगा, और उस मार्केट में मेरा पैशन है कि मैं काम करूं। स्कीम के लिए आप करोगे तो मैं तो समझता हूं कि आधा % भी ज्यादा बोल रहे हैं, वो भी फेल होने वाला। थैंक यू सर। आई मीन ये चीजें ऐसी हैं कि जो हम सबको, जितने भी ऑडियंस हैं, उन सबको आई थिंक दैट कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सुधांशु जी, कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। अभी एक सबसे पहले तो अनुभव एक विचार ले लेते हैं, उस पर हम सब लोगों के पास। हेलो, हाँ मैं जी, हाँ देख जी। नहीं पा रहा हूँ जी, आएंगे हम आप सबके पास। तो बहुत ही सुंदर कई सारे मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, जिन चीजों को नहीं, मैं सुधांशु जी इसके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जो फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है ना, और जी, आपकी आवाज कट गई। तो हम एक बार आपसे भी विनम्र आग्रह है कि एक बार अनुभव मैम से हम एक चीज एक छोटा सा चीज जो हमारे दिमाग में आ रहा है, और हो सकता है कि कई सारी चीजें निकल के आती हैं जो हम सबके लिए काफी यूजफुल थॉट प्रोवोकिंग चीजें होती है। अनुभव मैम, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि कई सारे जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए, वो सब चीज लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और इन चीजों को देखना चाहिए। एक दो चीजें अभी निकल करके आई, अरविंद सर ने भी बताया और मनीष सर ने भी शेयर किया कि कब किस चीज को देख कर आप अपना निर्णय लेते हैं, इसका असर फाइनल आउटकम पे होता है।
इस चीज को अगर हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो एक तो आपने अभी कहा अभी कि पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ इसी प्रोग्राम में अगर हम देखें तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में एक वो चल गया कि लो वैल्यू एडिशन जितना हो रहा है मॉनेटरी टर्म में हम देखेंगे कि लो वैल्यू एडिशन आउटपुट में एंगेज है रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं। तो उनमें से एक तो पहली बात कि इन आइडियाज पे काम करने के लिए महिलाओं के सामने चुनौतियां हैं, उनसे हम सब अवगत हैं, उस पर आपके विचार भी हम सुनना चाहेंगे। साथ ही हाई वैल्यू एडिशन या सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो अभी रूरल एरियाज में महिलाएं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा डाइग्रेशन भी है यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे, तो उसमें हमें लगता है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसमें महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि सिडबी जो है हम लोग पायनियर थे माइक्रो फाइनेंस में, वी वर द फर्स्ट वंस, एंड जितने भी हमारे बड़े एमएफआईज थे वो सब अभी बैंक बन चुके हैं, इंक्लूडिंग उत्कर्ष, इंक्लूडिंग जीवन, ये सब हमारे एमएफआईज कस्टमर्स थे। सो उसमें महिलाएं बहुत एक्टिव हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। हमारा जनरली जो एमएफआईज होते हैं 94% बोरोवर्स महिलाएं होती हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बोरोवर्स। दे आर जो बोलते हैं कि वो रूल अबाइडिंग होती हैं, वो पीयर प्रेशर में करती हैं, तो महिलाओं का उसमें बहुत भागीदारी उसमें काफी अच्छी है। लेकिन उसके थोड़ा ऊपर जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे एकदम क्राइसिस सिचुएशन है, उसको हम लोग मिसिंग मिडिल बोलते हैं, कि जो मिसिंग मिडिल, क्योंकि जो टॉप सेगमेंट है उसमें फिर है महिलाएं, बहुत ज्यादा नहीं है नंबर्स में, लेकिन जनरली एमएसएमई जो बड़ा सेगमेंट होता है, इवन लार्ज इंडस्ट्रीज जो सेगमेंट होता है उसमें अगर जो है महिलाएं मौजूद रहती हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी का भी मैंडेट है कि 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर की जितनी कंपनी है उसमें वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस जो होते हैं उसमें महिलाएं स्वतः आ जाती हैं। लेकिन जो मिसिंग मिडिल है ना, जहाँ पे हम बोलें कि जो टर्नओवर के टर्म्स में अगर बात करें तो 10 लाख से लेकर के जो 50 लाख तक या 1 करोड़ तक के टर्नओवर की हम बात करें, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत पुअर है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश बहुत की है लोगों ने। तो इसमें जो चैलेंजेस तो हम जानते ही हैं कि सोसाइटी हमारी ऐसी है कि महिलाओं को जनरली हम लोग होम मेकर्स के रोल में देखते हैं, वही उनके लिए हम लोग वो भी उसी हिसाब से अपना रास्ता चुनती हैं। और कई बार महिलाएं जब एंटरप्रेन्योर बनती हैं तो इस वजह से कि कोई मजबूरी आई होगी, या जैसे दिल्ली में हमारी कस्टमर थी शोभा जी, उनके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो गई, तो वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं अभी, उन्होंने बिजनेस पूरा लिया और करना शुरू किया, तो बहुत ही सक्सेसफुल है अभी मेडिकल इक्विपमेंट्स में। मंजुला मिश्रा जी हैं, बिहार की हैं लेकिन नोएडा में रहती हैं, उनका होलोसेफ करके उनका बिजनेस है, जो कि जो लेबल्स होते हैं, जो किसी भी चीज़ पर जो QR कोडेड लेबल्स होते हैं, वो लेबल्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये इसको मतलब जो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि डिफरेंट स्कीम्स है हमारे पास भी। अर्जना स्कीम है सिडबी में, जिसमें हम लोग बेटर रेट्स पर और लेस प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है महिलाओं के साथ कि जो बैंक क्रेडिट की हम बात करते हैं, मैं G20 की वर्किंग ग्रुप में हूँ और मैं कल जा रही हूँ अहमदाबाद, उसका इसी चीज़ पर एक्सेस टू फंड्स पे है और बिजनेस एक्सेलरेशन पर। तो ये बहुत बड़ा है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होती है महिलाओं की, प्रॉपर्टी ओनरशिप बहुत पुअर है, और अच्छे से अच्छे एनलाइटेंड पेरेंट्स भी जो है ना वो लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते हैं, और जो ससुराल साइड की प्रॉपर्टी होती है वो भी जनरली उनके नाम में नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी ओनरशिप की वजह से कोलैटरल का बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके सामने, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जो अपॉर्चुनिटीज आप जो पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि बिहार में एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसा आपने कहा कि दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। ये देश का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है बिहार की जो भूमि है। तो एनीथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर यहाँ पे उसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। तो अगर महिलाएं आना चाहें इस फील्ड में, और अगर वो इसको मतलब जो है कोप कर सकती हैं, तो सपोर्ट सिस्टम है, मतलब क्रेडिट गारंटी का मॉडल है जहाँ पे बिना कोलैटरल के आपको लोन मिल सकता है। आपको क्रेडिट गारंटी में महिलाओं के लिए जो गारंटी फी है वो भी कम है।
और जो बाकी जो स्कीम्स हैं, हर बैंक की स्कीम में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ रेट्स में कंसेशन है, और गवर्नमेंट का भी फोकस है कभी अभी। तो इट्स ऑल अबाउट वेंचरिंग। अगर आप वेंचर करना चाहती हैं, उस फील्ड में जाना चाहती हैं, तो आई डोंट थिंक आपको कोई रोक सकता है। वही जो मनीष ने बात बोली और अरविंद जी ने उसको सेकंड किया, मैं फिर कहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं कई बार, अब तो बहुत कम हो गए हैं, पहले आते थे कि भाई कौन सा ऐसा स्कीम है जिसमें हमको लोन मिल जाएगा और वापस नहीं करना पड़ेगा। तो वो मतलब कि हम किसी स्कीम के लिए कि इसमें गवर्नमेंट 10 लाख देती है, इसमें 20 लाख देती है, उसके लिए ना करके अगर हम अपने पैशन को फॉलो करें, अपने हार्ट को फॉलो करें कि जिस काम में हमें अच्छा लगता है करना, और जहाँ तो ही सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज कोई मतलब इट्स अ श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के लिए काम करते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू मैम, थैंक यू। कुछ प्रश्न भी आए हैं, कई सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। तो उसमें जैसे राजेश जी हैं, उनका प्रश्न है, हालांकि उन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न लिखा है मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्रूट्स इन बिहार, उसके संदर्भ में लिखा। और ओम प्रकाश जी हैं, उनका प्रश्न है स्मॉल लैंड होल्डिंग जो है वो चैलेंज है। तो इन दोनों चीजों के संदर्भ में हमने तो जो सुना है, हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं उनसे सुन करके कई सारे चीजें जो निकल करके आती हैं कि एक चीज जो चैलेंज है कि किस एरिया में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, जहाँ फ्लड आ जाती है, अनसर्टेनिटी है, क्लाइमेटिक है, वहाँ पे मेंटरशिप जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में जो वेल ट्रेंड है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे उनका रोल होता है मेरे समझ से। रादर देन कि अगर कोई एक लड़का 25 ईयर ओल्ड है, वो कुछ करना चाह रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी अगर हमसे आप पूछेंगे कि पिछले 3 साल से बिहार में रहते हुए कि क्या कोई एक जगह है जहाँ पे ये सूचना है, तो इसका उत्तर है कि नहीं है। तो प्रश्न हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अरविंद सर को सुनेंगे या मनीष सर को सुनेंगे या अनुभा जी को सुनेंगे, सब लोग को सुनने के बाद ये ध्यान में आता है कि हम फंड कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, वो ये लोग हमको गाइड कर सकते हैं और एक्चुअली गाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो आइडिया है उसके लिए मेंटर मिल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिसेज है उनके मेंटर्स का जो एब्सेंस है उसका भी प्रश्न उभर करके सामने आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले मनीष सर से जानना चाहेंगे कि कई ब्रीफली सर 1 मिनट में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाए कि कई सारे लोग हैं जो आना चाहेंगे और उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे अनुभव मैम ने बोला कि फॉलो योर पैशन, तो आपका पैशन अगर फार्मिंग में है तो पैसा कभी भी रुकावट नहीं बनता है। आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो धरती है आपको पैदा करके देती है, तो आपके पास वही आपका एसेट है। बेचना कहाँ है वो आपको ढूंढना है। तो आजकल के जमाने में अब तो इंटरनेट का युग है, तो बहुत आसानी से आप बायर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं कोई कमेंट पढ़ रहा था कि मेडिसिनल प्लांट का क्या भविष्य है, बहुत भविष्य है। जैसे अश्वगंधा है, सर्पगंधा, ये सब की चीजों का बहुत बड़ा डिमांड है। आपको बस मार्केट ढूंढना है, आप उसको कहाँ बेच सकते हैं, कौन आपके पास बायर है, और ये सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे। मतलब कॉमन मैन इसको नहीं परचेस करेगा, लेकिन आपको उन कंपनियों को, हो सकता है कि दवा बनाने वाली कंपनी हो या इस तरह का जो है कुछ एसेंशियल ऑयल वगैरह बनाती है, उनको चाहिए होगा, आप कर सकते हैं। तो हर चीज का मार्केट है, राइट। आप जो प्रोड्यूस करते हैं हर चीज का एक बाजार है, मार्केट है, आपको ढूंढना पड़ेगा, दैट्स योर जॉब, और वो आपका पैशन है, तभी आप कर सकते हैं। जी थैंक यू। अभी हम अनूप जी होंगे, तो उनके मन में कुछ प्रश्न अगर हो अनुभव के आधार पर, जो फील्ड में रहते हैं और बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में उनका काफी वो रहता है, हम लोग प्रश्न ले लेंगे। तो अनूप सर हैं आप? जी है जी। एक सेकंड थोड़ा तब तक के लिए तब तक कुछ रेज्ड हैंड ले सकते हैं क्या, अगर समय हो तो। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने प्रश्न को पॉइंटेड रखें। एक सेकंड हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जी ओके। तो बहुत अच्छा ये सेशन, बहुत अपने आप में अच्छा, अरविंद जी ने बहुत अच्छा पॉइंट को नोट आउट किया। उन्होंने जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, तो खासकर मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो में बिहार के संदर्भ में, जहाँ 12 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी एरिया है, 56% कल्टिवेटेड लैंड है, 5.6 से 8% वर्ल्ड की बेस्ट फर्टिलिटी लैंड है। ये चैलेंज तो रातों रात दूर नहीं होगा। इसके लिए हमें एक इनोवेटिव बिजनेस इनिशिएटिव बनाया हो, जिससे हमने पहली बार बनाया है यहाँ के मास पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसी चीज है जो आप शुरू कर सकते हैं, जो बेसिक आपका स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए मेडिसिनल प्लांटेशन में, जैसे और भी मनीष ने 5 ट्रिलियन
यूएस डॉलर बिजनेस हो गया, जबकि हमारी इकोनॉमी मात्र 2.6 ट्रिलियन डॉलर है। अभी तक हमने इस पर सोचा नहीं। इसमें पेरिसेबल प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट आपको करना है, कैसे करना है। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि क्या स्ट्रेटेजी हम बनाए जिससे कि हमारी मार्केट अच्छा हो, कम रिसोर्स में कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म जो है वो बहुत अच्छा होगा। और बिहार के संदर्भ में ये सबसे अच्छा है, खासकर एफपीओ एसपीओ सिस्टम अभी भी इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ है। मार्केटिंग आपको प्रॉब्लम आपसे अनूप जी एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे गांवों में आपने ऑब्जर्व किया है तो लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग और ये सब समस्याएं हैं, तो इन चीजों में एफपीओज में क्या चैलेंजेस है, क्या कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत समस्या तो है। अगर आप कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म में चलेंगे तो जो अंडर प्रिविलेज लीग है वो प्रोवाइडर है, और जो प्रिविलेज वाले हैं वो फिनांस मैकेनिज्म से काम करके पूरे काम करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हमने केबीआईसी में स्टडी किया था, जो उनका जो ऐसे ब्रांड की जो सक्सेस रेट है, मैं देंगे पिछले साल 1,13,000 करोड़ की टर्नओवर आई, और उसी प्रोडक्ट पर हिंदुस्तान लीवर था और आईटीसी की मात्र 95,000 करोड़ टर्नओवर आई। यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छा आ रहा है। ये तभी होगा जब आप कोलैबोरेट मैकेनिज्म में काम करें, और बिहार के संदर्भ में ये बहुत सटीक होगा। और स्टेप बाय स्टेप अगर थोड़ा अगर आप इसको वैल्यूएट करते चले तो मैं समझता हूँ 5-10 साल में बिहार एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म की बात आई। जैसे कि अभी वेयर हाउस की बात है, वेयर हाउस में मैं समझता हूँ कि 288 जो है $1 बिलियन का पिछले साल में से, और जबकि जो है $1 बिलियन का अभी भी नहीं है। बहुत से ऐसे गांव में मैं मकान पड़े हुए देखा हूँ, अगर उसको वेयर हाउस में कन्वर्ट किया जाए तो काम है। एर्गोस ने इसमें बहुत अच्छा काम बिहार में किया है, और काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं। अगर इसको भी अगर आप एफपीओ और एफसीओ पर जोड़े तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कम लैंड होल्डिंग वाले लोग स्केल अप नहीं कर पाते। जैसे कि जहाँ मनीष आनंदी का गांव है अरे, वहां पर मैंने देखा कि एक दुकान है, वो 40 किलो की मटन वो बेच लेता है, उतना हमने पंचकुला के केएफसी में बेचा है। अगर तो समझ में आ जाए कि तरह स्केल अप कैसे किया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कोलैबोरेट मैकेनिज्म में काम करना ही पड़ेगा। फंड की जहाँ तक बात आती है, ये हमेशा चैलेंजिंग इशू रही है। अगर जरूरत और निवेश करके काम कर ले तो बहुत सारा एक रिजल्ट सामने आएगा। यहाँ तक खूब पॉजिटिव की बात है कि सामान्य ज्ञान को अगर अध्ययन करें तो काफी सुधार हो सकता है। अनिल झा जी है, उनके भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, और वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और न तो समय कम है तो अब तो कुछ क्वेश्चंस ब्रीफली ले लेते हैं और उसके बाद एक मैं जल्दी से बोल दूं, क्योंकि रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ था नेपाल में, स्मॉल लैंड होने की बात कर रहे थे आप ना, तो नेपाल में एक मिले थे श्रीराम मंडल जी, वो लीज फार्मिंग का काम कर रहे हैं नेपाल में, ठीक है, और 2 कट्ठा लैंड से शुरू किया था उन्होंने। आज उनके पास 22 बीघा जमीन लीज फार्मिंग के अंदर है, जो लोगों से लेके, और वो एक प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कुछ कैश क्रॉप, कुछ बनाना, कुछ क्रॉप्स, कुछ अदरवाइज कर रहे हैं, और 3.5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि लैंड ओनर्स जो है, या जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लीज फार्मिंग नहीं हो पा रहा है। और मनीष का इसका डायरेक्टली इसमें एक्सपीरियंस है कि काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि लीज फार्मिंग हम कैसे कर सके, तो बहुत सारे लैंड जो है अंडर यूटिलाइज्ड है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हो सकती है कि अगर आपकी लैंड अंडर यूटिलाइज है तो आपको पेनल्टी मिलना चाहिए, कुछ आप अपना यूज कीजिए, या कोई ऐसा लीगल सिस्टम फ्रेमवर्क बनाइए ताकि जो है वो फार्म के अंदर यूज आ सके। तो ये प्रॉब्लम है, सब लोग मिल के बैठेंगे तो सोल्यूशन निकल आएगा। अगर नेपाल में कर सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? Sure, sir. Yes. Interesting observation. Thank you, sir. सपोज जी कुछ और लोग होंगे जो ब्रीफली मुझे लगता है कि राजेश जी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत समय से वो पूछ रहे हैं। राजेश जी ब्रीफली आप पूछिए। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू सुधांशु जी। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था मनीष जी से, जो कि मखाना पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप केरला को देखें तो केरला भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सेल करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती है, उसको मेडिसिन बना के करती है। अभी आप देख सकते हैं कि आटा जो 60 रुपये किलो बिकता है, और वो लोग डायबिटीज केयर आटा बेचते हैं 300 रुपये किलो। तो जैसा कि मैंने पढ़ा है कि मखाने के बारे में, कि अगर आप कोई खाना खाते हैं जिससे कि शुगर लेवल बढ़ता है, तो बाद में थोड़ा सा मखाना खा लीजिए तो उसको शुगर नहीं बढ़ने देता है। तो क्या इस मखाना से कुछ और मेडिसिन बनाया जा सकता है क्या वहाँ पे? क्योंकि मखाना अगर मैं कैरी भी करता हूँ, 1 किलो करता हूँ, तो साइज बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से 700 रुपीज़ के जी बिकता है, लेकिन उसी को
लोग डब्बे में मसाला से बेचते हैं तो 3000 रुपीज केजी हो जाता है। तो बिल्कुल सकता है उस पर कुछ बिजनेस हो सके। जी, मैं इसे बात करता हूँ वैल्यू एडिशन। कमोडिटी में कोई जान नहीं, कमोडिटी में आप शायद लॉस पे बेचेंगे या 2-3 रुपए किलो मिल जाए बहुत है। जब आप वैल्यू ऐड कर देते हैं, जैसे हर कोई जानता है चिप्स एक पैकेट चिप्स में एक आलू भी नहीं होता है, तो आलू हो सकता है 10 रुपए के जी मिले और चिप्स कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 250-300 रुपीज मिल जाता है। तो ऐसे ही जब मखाने को आप 1 केजी मखाना जो वॉल्यूमेट्रिक होता है उसको जब क्रश करके पाउडर बना देते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं करने के लिए, और हम लोग कर रहे हैं ऐसा। इनफैक्ट हम लोग का जो ग्रोथ है वो इस सेक्टर में ज्यादा है। आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ हम लोग मखाना नहीं बेच के हम लोग वैल्यू एडेड मखाना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर हम हमारी कंपनी की बात करें तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात का डिजर्ट तक सब कुछ हम मखाने से बना रहे हैं, एंड ऑल बेस्ड ऑन पाउडर। तो आप जैसे कन्वर्ट करते हैं तो पॉसिबल है, और भी लोग आएंगे तो मार्केट ग्रो करेगा, राइट? तो ये पॉसिबल है। अगर आप मखाना सेक्टर में हैं तो जरूर कोशिश कीजिए। नहीं तो मैं तो सॉफ्टवेयर में बेंगलोर में हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ किया जाएगा बेंगलोर में से किया जाए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बियॉन्ड स्नैक्स नाम की कंपनी है जो बनाना चिप्स होते हैं, जो केरला में बहुत फेमस होते हैं बनाना चिप्स, वो सिर्फ वही बनाती है। एंड अब उसने शार्क टैंक पे भी शायद वो सक्सेसफुल थे एंड अच्छा खासा पैसा भी रेज किया उन्होंने। तो इट इज डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ बनाना चिप्स जो होते हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो वही बात है कि जब वैल्यू एडिशन आप करते हैं ना तो आपका मार्जिन्स बहुत अच्छा होता है उसमें। जैसे हमने झाजी स्टोर में इन्वेस्ट किया है, तो झाजी स्टोर में हमने देखा है कि उनके मार्जिन्स जो है ना, क्योंकि उनका बहुत मतलब सब कुछ बहुत प्रोफेशनली वो करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ उनकी पैकेजिंग है या जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप खोलते हैं उसको, तो इतना प्रोफेशनली ये सब किया रहता है कि वो लोग ये मार्जिन कमांड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलूँगी कि एग्रीकल्चर में आप जो भी बनाते हैं, इवन फॉर बाय प्रोसेसिंग, तो आपका जो लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा आता है ना, शिपिंग का जो खर्चा आता है, वो एक बहुत बड़ा खर्च है इसमें। शिपिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, बल्क या बिकॉज ऑफ वेट। तो ये आप कैसे इसको टैकल कर सकते हैं? जैसे झाजी अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो बड़े शहर, जो उनके बड़े मार्केट हैं, जैसे बैंगलोर है या जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बना चुके हैं ऑलरेडी, तो बड़े शहर पे वेयर हाउसेस बना रहे हैं, जैसे अपने वेयर हाउसेस मतलब लीज पर लेकर के, केपेक्स नहीं है बट लीज पर। तो वो शिपिंग का जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा है ना, उसको मिनिमाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज जो जिलिंगो का जो फेलियर हुआ था कि वो हर 100 रुपये के सेल में 20 रुपये का नुकसान कर रहे थे, तो ये मॉडल कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। आपका यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा वो सपोर्ट करना चाहिए आपके बिजनेस को। लेकिन जब वैल्यू एडिशन बनाते हैं प्रोडक्ट तो मार्जिन इंक्रीज होता है। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू अरविंद सर। एक कमेंट सेक्शन में एक आया था कि हम लोग जब इनिशियली डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं, वो डेटा है, वो लोगों के पास मिल नहीं पाता है, या आज भी डिस्कशन में कई चीजें हुई हैं। तो समाप्त करने से पहले हम आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करेंगे, उससे पहले एक चीज अगर हो सके तो मेरे तरफ से भी प्रयास होगा। कई सारे मुद्दे इसमें निकल करके आए हैं, जो जुड़ पाए वो और जो नहीं जुड़ पाए उन सबके काम के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इनको एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिपेयर करके लोगों के साथ शेयर किया जाए विथ ऑल ड्यू मेंशन ऑफ द रिस्पेक्टिव जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं उनको लेकर के। और कई सारे पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं और हमें उम्मीद है कि लोगों को चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है, और जो फिर जिनके पास अनुभव है उनसे जब हम सुनते हैं फिर विचार करते हैं तो निराशा जैसी होने वाली बात की संभावना बढ़ती है, लेकिन निराश ना हो करके हम लोग कुछ भी सक्सेस। मैं एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, शायद आप लोग उस डायरेक्शन में कुछ कर पाए। एक तो जो आप कह रहे हैं कि ये जो है आप शेयर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करके, ये सब गवर्नमेंट से भी आपको शेयर करना चाहिए कि ये आपका ये प्रोग्राम था एग्री पर, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया एंड ये इससे रिकमेंडेशंस निकल करके आए हैं, तो वो भी जरूर आपको शेयर करना चाहिए। दूसरा, आप डायस्पोरा को ओपन करने की कोशिश जरूर करें। अभी जैसे झाजी के एक फाउंडर ने अभी जो बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो विदेश गए हुए थे, तो उनका जो बे एरिया में कैलिफोर्निया में जो उनका मीटअप था, वहाँ पे हमने झाजी को भेजा था। उनके एक को फाउंडर वहीं रहते हैं फिलाडेल्फिया में, तो बहुत सपोर्ट मिला उनको बिहार फाउंडेशन से। बल्कि मेरी मित्र थी रीना, तो रीना ने अपने घर में उनके रहने का इंतजाम किया ताकि ज़्यादा खर्च नहीं आए। तो डायस्पोरा वाज वेरी वेलकमिंग कि उनका देख करके झाजी स्टोर्स का,
तो आप डायस्पोरा को भी ओपन करने की कोशिश करें इसमें। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि टैलेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार में, बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे अच्छा टैलेंट मिलना, वो किसी भी सेक्टर में हो। अभी हमारे सिडबी के कस्टमर है, मेरी टीम वहाँ गई हुई थी, तो वो कंप्लेन कर रहे थे कि यही लोग जब लुधियाना जाते हैं तो वहाँ अच्छा काम करते हैं, लेकिन बिहार में है कि अगर आप हार्ड टास्क मास्टर बनते हैं तो छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि शायद यहाँ घर है तो उनको लग्जरी है, वहाँ पे उनको वो लग्जरी नहीं है, तो वो तो लेबर क्लास हो गया। बट उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर में, जैसे मेरी फ्रेंड कुमुद है, बैंगलोर में बहुत सक्सेसफुल है, तो वो उसको मैंने इनकरेज किया कि तुम बिहार में काम करो, तो मुजफ्फरपुर में वो अपनी जो उनका जो बैक ऑफिस बीपीओ चलाती हैं, करीब 40-45 करोड़ का टर्नओवर भी है उनका, तो उनको लैंड अलॉट हो गया, काम यहाँ करना चाहती है, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रही है कि यहाँ टैलेंट मिलेगा कि नहीं। तो जो सब लोग बाहर चले गए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर 10-20% यहाँ कम ही सैलरी मिले तो भी आप बिहार आकर के काम करने का सोचें, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ मच बेटर होगा रादर देन गुड़गांव। 10-20% कम भी मिले तो भी, और घर में आप रहेंगे, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अगर आप इसको प्रोपोगेट कर सकें इस चीज़ को, क्योंकि बिना टैलेंट के कोई बिजनेस नहीं चल सकता है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो एमएसएमई हो, कुछ भी हो। प्लीज कीप दिस इन माइंड। Thank you, ma'am. Again, I would like to thank Anubha ma'am, Manish sir, and Arvind sir. So, thank you very much for joining us. आशुतोष जी, आगे जी, की हाँ, जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर सेशन। और देखिए 9:36 हो रहे हैं और अभी तक इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सो दिस शोज द स्पिरिट एक्चुअली। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया सेशन रहा है, और जो इनपुट्स निकल के आए हैं विल सर्टेनली उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। अभी काफी समय हो गया है, चंद्रभूषण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज फाइनल कंक्लूजन के रूप में दे शॉर्ट इंट्रो के साथ। आशुतोष जी सॉरी, एक क्योंकि जो अनुभव जी बोल रहे हैं ऑल्सो मैं भी उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि आज की जो रिकमेंडेशंस हैं, खास करके जो पॉलिसी साइड में है या जो फाइनेंसिंग कैपिटल साइड में जो है, वो किसी भी तरह से बिहार गवर्नमेंट को डेफिनेटली प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि विदाउट दैट हम सब बातें करते रहेंगे, हम अगले साल भी ये कर सकते हैं और ये सेम बातें करते रहेंगे। कोई भी मूवमेंट करने के लिए, और अनुभव जी हैं, शी हैज़ दैट एक्सपर्टीज की एक बड़ा फंड लेके एक बड़ा इंटरवेंशन हम प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली टैलेंट का थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन ग्लोबल डायस्पोरा में वो टैलेंट है कि हम उसको एक बड़ा रूप दिया जा सकता है और एक विजन के साथ उस पर काम किया जा सकता है। करबिन जी, हम लोग बीसी फंड, स्टेट स्पेसिफिक बीसी फंड के लिए बहुत एडवांस स्टेज में हमारा डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, जिसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ सिर्फ भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये अगर बन जाता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, तो हमारे स्टार्टअप्स को पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। आशुतोष जी, आपने कंक्लूड करने के लिए मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है। तो एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, थॉट प्रोसेस स्टार्टअप इन बिहार, ठीक है, तो मेरा अपना ये मानना है कि हम भी स्टार्टअप का सरकारीकरण सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ा बैरियर है। मेरा ये कहना है कि जैसे बिहार में माइंडसेट बना हुआ है कि सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, वैसे ही जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसकी सरकारीकरण हम क्यों सोचते हैं? वो ना सोच के अगर हम ये सोचे कि प्रोड्यूस वेयर इट कॉस्ट लेस एंड सेल वेयर इट सेल्स हाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिथिला नेचुरल है और मैं बेंगलोर में, मान लीजिए मैं यहाँ डिमांड क्रिएट कर दूं मखाना का, डिमांड क्रिएट कर दूं, तो हम यहाँ पे हाई में सेल कर सकते हैं और वहां से लो कॉस्ट में खरीद सकते हैं। तो एग्री स्टार्टअप के लिए अभी समय ये है कि वो अपॉर्चुनिटी ये ढूंढे कि कहाँ पे हम प्रोड्यूस लेस कर सकते हैं या परचेज लेस इन अ लेस अमाउंट बिहार कर सकते हैं, और दूसरे मार्केट में जैसा कि रिस्पेक्टेड सभी पैनल मेंबर ने बोला कि सप्लाई चेन और वैल्यू चेन, इस दो चीज पे अगर हम काम करें तो शायद हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है। लैंड छोटा है, बड़ा है, व्हाटएवर, वो सारी चीजें एक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म के प्रोसेस में है। तो स्टार्टअप कैन नॉट वेट फॉर दैट।
जैसे यही मीटअप हुआ तो हियर आई सी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मिथ्राल नेचुरल्स एंड आस्क कि भाई आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, एंड इफ आई क्रिएट ब्रांड ओवर हियर इन बेंगलोर, या आप बेंगलोर में मार्केट उसका बिल्ड करना चाहते हैं, तो द रियल बायर्स आर हियर। हमारे यहाँ 12 करोड़ 14 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार में, लेकिन 2.5-3 करोड़ पॉपुलेशन जो बेंगलोर का है या महानगरों का है, दे आर द रियल बायर्स। अगर आप कॉस्टिंग करके बढ़िया पैकेजिंग करके बिहार में सेल करना चाहते हैं मखाना को, तो प्रोबेबली जो वहाँ की सिटीज हैं और उसमें हाई क्लास और हाई इनकम ग्रुप है, वही आपके कॉस्टिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। तो जरूरत ये है कि हम स्टार्टअप का सरकारीकरण ना सोच करके जो प्योर प्रोसेस है, हम मेंटरिंग लें किसी से, हम अपने आइडियाज को नर्चर करें, और कोई जरूरी नहीं है कि हम शुरू में इन्वेस्टमेंट ही ढूंढें। हम सीड कैपिटल से भी उसको करके एस्टैब्लिश करके नेचुरल करके दूसरे का पैसा लेकर बर्न करने से अच्छा है कि हम अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग को करें और उसके आगे बढ़ें। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट प्रोसेसिंग if we are really looking success of a startup in Bihar or by Biharis, whatever way. The market is global. It is not that Bihar is the market. You cannot solve a problem of a small lands. Okay? Then you will be some kind of activities, not the startup. तो यहाँ सिर्फ जरूरत है कि आइडिएशन हो और उस पर मेंटरिंग हो और उस पर काम होना शुरू करें। मेरा कहना यही है कि सारा निचोड़ लेकर अभी जैसे मिथिला नेचुरल्स ने जो काम शुरू किया है, तो आई वुड लाइक टू सी इन एवरी प्लेसेस इन द बिग सिटी कि हमारा मखाना जो है सो वहाँ अवेलेबल हो। तो अगर कल होके हम बेंगलोर में डिमांड उसकी ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो ही विल पुट द प्रोसेसिंग यूनिट हियर इटसेल्फ इन बेंगलोर, देन प्रोड्यूसिंग इन बिहार, and doing every packaging over there. वो raw material यहाँ बेच सकते हैं। Ultimately profit goes to his pocket only and more। और अगर हम ब्रांड नहीं क्रिएट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मखाना खरीद के लाऊं और सोचूं कि ये किसी दुकान में रख दूं, तो शायद वो आधा भी नहीं बेच पाएगा। सर जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, हम लोग 1% से कम बिहार में बेचते हैं मखाना, सारा हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड में जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं कभी भी बेंगलोर में पुट अप नहीं करूंगा, बिकॉज मैं बिहार आया हूं तो बिहार के लिए हूं और बिहार में ही करूंगा। यहीं से पैकिंग होकर जाएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल यहीं अवेलेबल है। हम ये जानते हैं जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है या जहां पे मार्केट अवेलेबल है, दो जगह ही प्लांट लग सकता है। तो मखाने का प्लांट जो है बिहार में लगे, मैं स्पेसिफिक मखाना की बात कर रहा हूँ, तो हम सबके लिए बेहतर है जी। जैसे बनाना चिप की बात है, तो आज ब्रांड ऐसा हो गया है कि बनाना चिप को केरला चिप कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम मैक्सिमम टाइम स्टार्टअप के सरकारीकरण में फंस जाते हैं, और वहां पे थोड़ा सा भूषण जी आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सरकार का बहुत बड़ा रोल है कैटलाइज करने का। मतलब जितना दो सीजन्स में शार्क्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे ज्यादा पर्सनल मनी मैंने पिछले साल बिहार में अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इनफ नहीं है, और सरकार के पास वो रिसोर्सेज हैं कि उसको स्केल किया जा सकता है। अगर आप बोले सरकार का कोई रोल नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत होगा मेरे हिसाब से। नहीं, मैं ये नहीं बोला कि सरकार का रोल। यहाँ जरूरत ये है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका स्किल बिल्ड हुआ और वो कनेक्ट करके अपने काम को स्टार्ट करें, वो स्पीड जितना जल्दी आ जाए, इंस्पाइट को वो पेपर में फंस जाए और प्रोसेस में फंस जाए, तो अगर हम उनको मेंटर करके उनके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो शायद वो स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो पाए। आफ्टर अ पॉइंट द स्पीड कम्स फ्रॉम कैपिटल। आप समझिए, पूरा 1700 अगर 400 साल का हम कैपिटलिज्म देखेंगे, तो डच वाज द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड बिकॉज दे हैड अ पब्लिक डेट सिस्टम। उसके बाद यूके में आया, उसके बाद यूएस में गया। तो विदाउट कैपिटल आप इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। सुधांशु जी को अच्छे से मालूम होगा, इकोनॉमिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस इज बाय फाइनेंस एंड फॉर फाइनेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम बिहार में ये आ रहा है सर, कि पीपल आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप।
जो एक मिनट हेलो। See, we've already discussed about it, I think. अब अभी थोड़ा अगली बार हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम बहुत है, एक एक आदमी की प्रॉब्लम ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तो रिज्यूम किया जाए इसको, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ये सेशन थोड़ा अच्छा रहा है। एग्रीकल्चर कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, हम लोगों ने भी बड़ा मेनफ्रेम बनाया, पर सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम को ध्यान में रखते थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष जी से जल्दी से धन्यवाद ज्ञापन किया जाए। आज के मीट को कंक्लूड नहीं करते हैं, टू बी कंटिन्यूड लिख के इसको कंटिन्यू रखेंगे, और मुझे लगता है कि इतना जल्दी कंक्लूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। We want you more, sir. We want you more. The conclusion